हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस important issues from the today's Hindu edition, but these issues are also going to help you in CLAT exam. खास करके जो आज हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे, इट विल गिव यू अ रिकैप ऑफ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा। यू विल कम टू नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, व्हाट वाज द लॉजिक during the British time, how India has passed sixth schedule, and AFSPA will be also discussed in that issue। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगा। सेकेंड, वी आर गोइंग टू हैव अ एडिटोरियल विच विल डिस्कस इन ब्रीफ। इट विल गिव यू द रिकैप अबाउट टुडेज जो आज हम देखते हैं कि IITs हो गया, IIMs हो गए, फिर इंडियन PSUs हैं लाइक LIC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सो विच आर प्लेइंग अ वेरी huge role in the economic growth of India. So they were established हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का, it was a brain child. So what outcome we have after 75 years of independence? After that we are going to discuss about a Chinese vessel, and then we are going to discuss about a issue conflict related to region between Azerbaijan and Armenia। वो 2 साल से वो रीजन कॉन्फ्लिक्ट में है, एक बार फिर से वो न्यूज़ में आया है। सो वी आर गोइंग टू सी दैट। So let's start with the news and be prepared with a pen and paper to jot down all the important points which I will be discussing today. So let's start. The first important news is that Iran denies role but justifies attack on Salman Rushdie। तो एक न्यूयॉर्क में इवेंट हो रहा था, वहाँ पे सलमान रश्दी को स्टैप किया गया। तो यहाँ पे ईरान, अब ईरान का नाम क्यों आ रहा है? सलमान रश्दी वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नाउ व्हाई ईरान इज़ इन द पिक्चर? So Iran is in the picture, you will come to know because सलमान रश्दी ने एक बुक लिखा था that is called as सैटेनिक वर्सेस। उसका नाम क्या है? सैटेनिक वर्सेस, ठीक। ये बुक लिखने के बाद, ठीक है, ईरान ने इन लेट 1980s ईरान ने जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने इनके खिलाफ एक फतवा जारी किया, ठीक है। वो फतवा आज तक है। So that's why people are thinking that Iran may be having a role in stabbing the renowned author Salman Rushdie. So but over here जो foreign ministry है ईरान का, now that has denied any role, but they have justified their attack on Salman Rushdie, saying that the former supreme leader, he had issued a fatwa against the writer. Okay, so currently Salman Rushdie, he is in a hospital now. He has a damage. He's suffering from a damaged liver and severed nerves in arm and eye. Okay, and Rushdie was likely to lose sight in the injured eye. So he has been stabbed. Okay, many times. So we will return to this article again on our editorial page for more information। वहाँ पे मैं कुछ और भी बुक्स के नाम बताऊँगा सलमान रश्दी के, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। Second is now President's speech at the Red Fort during the 76th Independence Day. So India has completed 75 years of independence and yesterday was 76th Independence Day। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है पंचप्राण, सॉरी पंचप्राण, या दैट विल बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पंचप्राण। इट मीन्स 5 कस्में, 5 रिजॉल्व्स। ये कब तक हमें फुलफिल करने हैं? 2047 तक, ठीक है ना। किस लिए? टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फॉर द कंट्री। फाइन, 2047 में इंडिया को 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए। नाउ सी व्हाट आर दिस 5 प्लेजेस नाउ। सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर, द फर्स्ट इज रिजॉल्व फॉर डेवलप्ड इंडिया, देन द नेक्स्ट इज रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ colonial mindset, third is taking pride in our legacy, our strength of unity and fulfilling the duties of citizens with honesty। These are the 5 प्राण, ठीक है ना। 5 वादे, 5 कस्में। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी इज की टू ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, सो फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज आर्टिकल 51A। फाइन, सो इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। So we have 11 fundamental duties. They were added by 42nd Constitutional Amendment Act, and all the 11 fundamental rights are contained in Article 51A. Then in 2003 a new fundamental duties was also added.
नाउ ओवर हियर दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो क्वेश्चन आता है, इट वॉज स्वर्ण सिंह कमिटी, okay, it was Swaran Singh committee which recommended the inclusion of fundamental duties in our constitution. Originally हमारे constitution में fundamental duties नहीं था, ठीक है. It has been late added later by the 42nd Constitutional Amendment Act based on Sardar Swaran Singh committee recommendation. Okay, now the next two things where the government has highlighted is that government is now pointing to national education policy, okay, that will set a new standard in education in India. And over here he is also saying that the country should be proud of every Indian language. तो अगर हम national education policy में देखेंगे तो they promote instructions in mother tongue up to class 5. The next two things where the Prime Minister's speech has highlighted is corruption and nepotism, ठीक है, तो इन्हें ख़त्म करना है. एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये ब्रू रेफ्यूजीज़ के बारे में बार बार आता रहता है, ठीक है ना. तो ये ब्रू रेफ्यूजीज़ हैं, ये रियांग रेफ्यूजीज़ भी कहते हैं. ये पहले मिज़ोरम में थे, ओके, बट दे फ्रॉम मिज़ोरम दे वेंट टू त्रिपुरा फॉर सेटलमेंट. तो यहाँ पे जो ब्रू रेफ्यूजीज़ हैं उन कहाँ से होते हैं, वो मिज़ोरम से होते हैं. एंड नाउ दे आर मच ऑफ द ब्रू रेफ्यूजीज़ दे आर रिसाइडिंग इन त्रिपुरा. सो दे सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे इन देयर न्यू settlements. Let's come and let's complete the सलमान रश्दी's information. तो यहाँ पे देखिए सलमान रश्दी के बारे में बात हो रही है. तो इनकी जो सैटेनिक वर्सेस थी, सैटेनिक वर्सेस, ये इनकी 4th नॉवेल थी, ओके. नाउ यू हैव टू राइट डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ सी दिस सैटेनिक वर्सेस व्हेन इट वाज पब्लिश्ड. सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1989, ओके. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट इट वाज पब्लिश्ड इन 1989, जैसे इन्होंने पब्लिश किया तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी, ठीक है, ईरान में ना इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, ठीक है ना. देखिए ये वही टाइम है जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया था. और ये वही टाइम है जब ईरान में भी रेवोल्यूशन हुआ अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरवेंशन. It is called as Islamic Revolution. It abolished the rule of kings in Iran. Iran was earlier ruled by Shah Pahlavi, okay, Pahlavi dynasty, which were considered closer to US. Fine. उसके बाद 1979 में Islamic Revolution हुआ. This Pahlavi Revolution, the king of Iran, he fled to USA, and then there was Iran became Islamic Republic. So Iran became Islamic Republic. So it is called as Islamic Republic of Iran. इसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जिसमें जो वहाँ के रिलीजियस लीडर थे उनको सबसे सुप्रीम लीडर माना गया. वो रिलीजियस लीडर थे अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी. सो ही इशूड अ फतवा अगेंस्ट सलमान रश्दी वे बैक इन 1989. फाइन. So since then he has lived in the shadow of death, Salman Rushdie. So he was stabbed multiple times at a literary function in New York, and currently his condition remains critical, but he is out of ventilator. Fine. तो यहाँ पर हम देखेंगे that इन्होंने अभी तक 14 नॉवेल्स लिखा है, ठीक है. जो इनका एक नॉवेल है लेटेस्ट, हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज. सो अ बुक ही हैड प्रॉमिस्ड टू राइट फॉर हिज 9-year-old सन. उनकी एक बुक है दैट इज कॉल्ड एज मिडनाइट चिल्ड्रन, दैट हैज़ वन द बुकर प्राइज. Okay, so it was about India's independence and the movement of the refugee problem which India witnessed after the independence. Okay. उसके बाद इनकी जो नेक्स्ट नॉवेल आने वाली है उसका नाम क्या है, दैट इज विक्ट्री सिटी. सो इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ एन एपिक and a book about the power and hubris of those who are in the power. So it is going to come out in February 2023. The next is about the fragility of Northeast integration. तो यहाँ पे we are talking about India's Northeast region. So if you will just see India's Northeast region, so we call them as 7 sisters. So you have नागालैंड. मैं उसमें आपको स्टेट्स बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. नागालैंड, देन सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, देन मिज़ोरम,
देन मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय. ओके, मेघालय. सो दिस 7 स्टेट्स दे आर नोन एज 7 सिस्टर्स. इनको हम क्या बुलाते हैं? 7 सिस्टर्स. पहले ये सारे जो 7 सिस्टर्स हैं सिक्किम को छोड़ के दे वर ऑल पार्ट ऑफ असम. ठीक है, तो असम को एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता था. ठीक है, सो एक असम का प्लेन एरिया था. उसके बाद फिर असम, फिर जितने भी माउंटेनियस एरिया थे, ओके, इनको एक अलग रेगुलेशन के अंदर गवर्न किया जाता था. दैट रेगुलेशन वाज कॉल्ड एज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873. ओके, सो दीज आर आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग असम. टोटल असम को इंक्लूड करके ये टोटल 8 हो जाते हैं. फाइन. इसमें से अगर हम 6th शेड्यूल की बात करें तो 6th शेड्यूल जो है इट रिकॉग्नाइजेज सर्टन स्टेट्स अमंग दिस एज ट्राइबल स्टेट्स. सो इट इज़ रिमेंबर्ड एज MATM. ठीक है ना, MATM. सो दिस MATM is MM stands for मिजोरम, मेघालय, देन असम एंड त्रिपुरा. तो इनके लिए एक अलग से स्केड्यूल बना है, दैट इज 6th शेड्यूल which empowers the tribal areas, the tribal peoples who are living here with the special rights to govern those areas. That is called as 6th schedule. Now let's come with the history. तो यहाँ पे जब ब्रिटिश लोगों का जो इसको एक टर्म यूज़ करते थे ब्रिटिश पीपल, दैट वाज कॉल्ड एज मंगोलियन फ्रिंज. दिस टर्म वाज coined by Olaf Carroll in 1940. Okay, and they were called as crown colony. So यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रिटिश लोगों का क्या व्यू था इसके बारे में. तो ये बात चल रही है 1937 की कि जो गवर्नर थे असम के रॉबर्ट रेड, इन्होंने लिखा था एक बुक में. द बुक इज कॉल्ड एज अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम. एंड ही सेड that people here, they are neither racially, historically, culturally nor linguistically had any affinity with the rest of India. Fine. Now ये जो area थी, that is excluded and partially excluded areas, they were constituted largely of the unadministered hills of Assam. ठीक है ना, तो असम प्लेन्स जो था that was a revenue plain, जहाँ से ब्रिटिश लोग अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. उसके बाद जो excluded area था, जो प्लेन्स का पार्ट नहीं था, they were governed, they were treated as an inner line created by Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. ठीक है, जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे कि असम का बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बॉर्डर डिस्प्यूट है. अभी मिजोरम के साथ है, मेघालय के साथ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ है. सो दिस राइजेस फ्रॉम हियर. दिस इनर लाइन परमिट डिफाइंड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 की कितनी एरिया इस रेगुलेशन के अंदर डिफाइन की गई थी पर्टिकुलर इनर लाइन परमिट के लिए. गॉट इट. सो ओवर हियर इफ यू विल जस्ट लुक ओवर हियर दैट Assam, it was later separated from Bengal and Assam was made a चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस. चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस मतलब जैसे आज हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, वैसे ब्रिटिश के टाइम में जो स्पेशल एरियाज होते थे उनको कहा जाता था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. फाइन. नाउ सी, असम जो था इट वाज एनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश बंगाल आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर ऑफ 1824-26 and the signing of treaty of Yandobor. So now this information is very important for us that असम को ब्रिटिश बंगाल में कब एनेक्स किया गया, आफ्टर विच वॉर, दैट इज एंग्लो बर्मीज वॉर ऑफ 1824-26. कौन सी ट्रीटी साइन की गई इस वॉर के बाद? ट्रीटी ऑफ यंदाबो. नाउ अगर हम देखेंगे ब्रिटिश असम, तो पहले जो ब्रिटिश असम था उसमें त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ के, बिकॉज दोज वर प्रिंसली स्टेट्स, ये सारे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, दे ऑल वेर पार्ट ऑफ असम. ओके, सो दे ऑल वेर पार्ट ऑफ असम. सिर्फ त्रिपुरा एंड मणिपुर दे वेर प्रिंसली स्टेट्स. बट त्रिपुरा और मणिपुर में भी ब्रिटिश का सेम सिस्टम था कि जो प्लेन एरिया है वहाँ से वो ब्रिटिश लोग उसको कंट्रोल करते थे, और जो हिली एरियाज था उसको उन्होंने लोकल किंग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए उसको उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दे दिया था. फाइन. उसके बाद अब हम आते हैं 6th शेड्यूल पे.
So sixth schedule, it was independent India's first administrative instrument for undivided Assam's tribal belt. एक बहुत ही विख्यात, बहुत ही important work है, the works of Werner Elwin. So he was British born anthropologist and he advocated, ये बहुत ही important line है, that he advocated कि development of tribals कैसा हो. देखिए tribals को develop कैसे किया जाए, या तो उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ लिया जाए. मेन स्ट्रीम मतलब जैसे हम आप जीते हैं और उनको उसका पार्ट बनाया जाए, ठीक, तब उनको डेवलपमेंट हो. क्या ये सही तरीका होगा? तो ये सही तरीका नहीं माना जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो उनका कल्चर है वो साइडलाइन हो जाता है, उसका डर होता है. तो ये अप्रोच इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता. इंडिया में जो अप्रोच फॉलो किया जाता है वो अप्रोच जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन एल्विन स्टडी, दैट ही सेज दैट ट्राइबल्स आर टू बी एनकरेज टू लिव बाय देयर ओन जीनियसेस. मतलब ट्राइबल्स को हम सिर्फ हेल्प करेंगे डेवलप होने में, बट जो उनका डेवलपमेंट है, वो जो उनका कल्चर है, उनका रीति रिवाज है, उनके जो इंस्टीट्यूशंस है, उसके बेसिस पे ही वो डेवलप करेंगे और उनको पूरी आज़ादी दी जाए कि ताकि वो उस तरीके से जी सके, अपने कल्चर के हिसाब से वो जी सके, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से अपने आप को एडमिनिस्टर कर सकें. इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्स्थ शेड्यूल आया था. So this sixth schedule, it mandated the formation of autonomous district councils. जैसे different ट्राइबल एरियाज हैं तो उनके अपने अपने autonomous councils होंगे, फाइन, and those councils will be run by tribal customary laws. जो ट्राइब्स जो उनके अपने customary laws होते हैं, that will be used for administering this autonomous district councils. उसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ शेड्यूल और नागा हिल्स के ऊपर. सो यहाँ पे देखिए नागा हिल्स है, यहाँ पे सिक्स शेड्यूल को लाया गया, ठीक है. आफ्टर दैट देयर वाज इंसर्जेंसी, फिर वहाँ पे AFSPA भी लॉन्च हुआ. बाद में नागालैंड बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू बी डिक्लेयर एज अ सेपरेट स्टेट इन 1963 आफ्टर असम, फाइन. तो यहाँ पे ट्वेंसांग और डिस्ट्रिक्ट और मोन डिस्ट्रिक्ट को नागा हिल्स में जोड़ा गया और एक नया स्टेट क्रिएट किया गया, इट इज़ नागालैंड स्टेट इन 1963, फाइन. बट उसके बाद भी चलिए, नागालैंड में इंसर्जेंसी अभी भी चल रही है एंड द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ लास्टिंग सॉल्यूशन फॉर नागा इंसर्जेंसी. आफ्टर दैट इफ वी विल कम, it is also talking about different other states. So see, in 1972 most of this region, नागालैंड अब सेपरेट स्टेट बन गया असम से बाहर. 1972 में असम को बाइफरकेट किया गया, ठीक है. फिर मेघालय, इट बिकेम अ स्टेट. देन अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, फर्स्ट दे वर डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी एंड देन इन 1987 दे बिकेम स्टेट्स. उसके बाद त्रिपुरा एंड मणिपुर, पहले ये पार्ट सी स्टेट्स थे, बट 1972 में दे वर ऑल्सो मेड फुल फ्लेज स्टेट्स, फाइन. अब देखिए यहाँ पे ट्राइबल्स का जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, एक फियर ये था कि मेन स्ट्रीम हमें डोमिनेट नहीं करना चाहिए, दैट देयर शुड नथिंग बी, दैट वी शुड नॉट बी फोर्स्ड आउट ऑफ आवर ट्रेडिशनल वर्ल्ड, ओके, विच इज़ ओवरवेल्म्ड बाय अ कल्चर एंड पॉपुलेशन डेल्यूज फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, ठीक है ना. कि हमारा ऐसा ना हो कि मेन स्ट्रीम हमको डोमिनेट कर जाए और हमारा कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाए, फाइन. बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो यहाँ पे सिक्स शेड्यूल है. उसके बाद इफ़ यू विल जस्ट सी दैट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, सो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन 1971 एज एन एडवाइजरी बॉडी. पहले जो इसके मेंबर्स होते थे वो गवर्नर्स होते थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, बट 2002 में गवर्नर्स को हटा के चीफ मिनिस्टर्स को इसका मेंबर बनाया गया, ओके, बिकॉज चीफ मिनिस्टर्स दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सो दे आर मोर क्लोज टू द लोकल नीड्स एंड डिमांड्स. उसके बाद एक नई सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट करी गई, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इन 2004. पहले ये एज अ डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन 2001 एंड देन इन 2004 इट वॉज डेवलप्ड एज अ फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री. उसके बाद 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाया गया. नाउ लुक ईस्ट पॉलिसी का और नॉर्थ ईस्ट रीजन का बहुत ज़्यादा वो है, कनेक्शन है. नाउ सी इन लुक ईस्ट पॉलिसी, India aims to develop economic linkages with Asian countries like Myanmar, Thailand, Indonesia, Singapore, Laos, Cambodia, Philippines, Vietnam. These are not Asian countries, fine.
बट यहाँ पे जो इकोनॉमिक लिंकेज होगा वो मेजरली नॉर्थ ईस्ट रीजन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया जाएगा. लाइक इट एम्स फॉर डेवलपिंग अ लैंड एंड सी रूट एंड रिवर रूट्स टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन विद एशियन रीजन टू डेवलप दिस रीजन. ओके, सो ऑल दिस एफर्ट्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप द नॉर्थ ईस्ट रीजन. उसके बाद 2010 में आते आते नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में रिस्ट्रिक्शंस थे बाहर के लोगों को आने में, जिसको थोड़ा सा ईज किया गया. उसके बाद देयर वाज बीपी जीवन रेड्डी कमिटी एस्टेब्लिश्ड इन 2004 which recommended to repeal Armed Force Special Power Act. Fine. Now coming to the last paragraph, it is more political in nature. I will just give you the gist. This says कि politics में नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स में in majority most of the states BJP is the ruling party, especially Assam, Tripura, Manipur and Arunachal Pradesh. बट यहाँ पे द ऑथर इज सेइंग कि एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स और ग्रास रूट व्यू पॉइंट या जो लोग जो सोचते हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसके बीच में बहुत फ़र्क होता है. ओके, फॉर एग्जांपल दैट असम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बट अगेन वहाँ पे बीजेपी ही पावर में आया. ठीक है, जैसे कि अगर मणिपुर में देखेंगे तो AFSPA को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत है. आई कैन टॉक अबाउट इरोम शर्मिला. शी इज़ वन ऑफ द एक्टिविस्ट हु वेंट फॉर अ fast for around 16 years protesting against AFSPA, but still over there BJP has come back to power. So वहाँ पे it says that what the people are thinking at grassroots level is different from electoral politics. क्योंकि electoral politics में people in northeast region they try to be aligning with the national parties. The next is the temples that Jawaharlal Nehru built. So it is talking about modern India. So India, which achieved independence on August 15, I want to give you one very special information that why August 15 was chosen as Independence Day for India. पहली बात तो ये डेट इंडियंस ने नहीं चूज़ किया है, ये डेट चूज़ किया है लॉर्ड माउंटबेटन ने. ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन वो ब्रिटिश नेवी के एक नेवल कमांडर थे. ठीक है, नेवल कमांडर किस रीजन के? पैसिफिक रीजन के. ठीक है ना, एशिया पैसिफिक जिसको आप कह सकते हो. फाइन. इट वाज लॉर्ड माउंटबेटन हु ओवरसॉ द सरेंडर ऑफ जापान ऑन 15 अगस्त 1945. ये डेट है जिस दिन जापान ने सरेंडर किया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. ओके, जापान ने सरेंडर क्यों किया था? क्योंकि दो डेट्स इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त और 9 अगस्त. ठीक. सो हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग वो ये इन दोनों डेट्स को हुई थी. हिरोशिमा नागासाकी. ठीक है, ये इन दो डेट्स को हुई थी. फाइन. ओके, सो इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया, और जो सरेंडर का जो पूरा प्रोसेस जिसने ओवरसी किया था ही वाज लॉर्ड माउंटबेटन हु वाज द लास्ट वाइसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज C. राजगोपालाचारी. Okay, so that's why 15th August was chosen as the Independence Day or a day for transfer of power. British कभी भी Independence Day term use नहीं करते. They call this as a transfer of power. Transfer of power to two dominions, that is India and Pakistan. Okay. So now when India became free, so दो वर्ल्ड वॉर हो चुके थे. ठीक है, वर्ल्ड जो था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, टेक्नोलॉजी का काफ़ी बोलबाला था. सो इंडिया गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग दैट टाइम. फाइन. सो जो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he established many institutions, okay, like Life Insurance Corporation of India, then Bhakra Nangal Dam, Bharat Heavy Electrical Limited, All India Institute of Medical Science, LIC, Oil and Natural Gas Corporation, Indian Oil Corporation, National Library of India, National Institute of Design. ठीक है ना, जिसको कहते हैं मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो नेहरू
always envisioned that they are the commanding heights of stable self sustaining economy. ठीक है, जैसे IITs को एस्टेब्लिश किया, ठीक है, साथ में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय भी एस्टेब्लिश किया. देन मैनी steel plants came up in Bhilai, Durgapur, Rourkela. At the same time, he also focused on establishing Khadi and Village Industry Commission for development of cottage industries in India. Then Chandigarh, which was the first smart city, okay, so he also saw the design and establishment of a new city, which is Chandigarh, which is a joint capital of Haryana and Punjab. Now, who is the designer or architect of city Chandigarh? Please write me in the comment box. Fine. Then he also envisioned a strong and vibrant election commission of India, then planning commission. Okay, then if you will just see, अगर हम कुछ results अगर देखेंगे तो Indian Oil, it became the first Indian company to be listed in the Fortune 100 in 2014. then अगर हम अमूल की बात करें तो अमूल it emerged as the country's best known consumer brand and India became the largest milk producer in the world because of white revolution which was led, you can say, which was led by Amul only. अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. ठीक है. If you will just see, so here he has set the momentum. Then we saw green revolution which later came and made India self-sufficient in food production. Then telephone revolution. ठीक है, मतलब नेहरू के बाद ये सब आया, बट उसकी एक जो है होती है बेस, उसका इंडस्ट्रियल इंडिया का बेस वो नेहरू जी रख के चले गए थे. फाइन. एंड देन लेटर द प्राइम मिनिस्टर्स, जो बाद में जो प्राइम मिनिस्टर्स आए, दे लेड इंडिया इन फूड रेवोल्यूशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, then opening up of economy in 1991. okay, so those are the things which have been important and which has led to India to be widely recognized as the fastest growing economy in the world in the 21st century. The next is a roadmap for India EU ties. तो यहाँ पे हम we are talking about India and European Union. So we are celebrating the 60th year of diplomatic relations between European Union. Okay, so if you will just see that some important things are mentioned over here. So the पहला चीज़ तो ये है कि a cooperation agreement was signed in 1994 which took the bilateral relationship beyond trade and economic cooperation. That is the first thing. The second is the first India EU summit was held in June 2000. Okay, and then the fifth India EU summit in 2004. This is very important, where the relationship was upgraded to strategic partnership. उसके बाद 2020 में 15th इंडिया EU समिट हुआ, जहाँ पे एक रोड मैप बनाया गया विच फोकस्ड ऑन 5 important domains. Those are foreign policy and security cooperation, trade and economy, sustainable modernization partnership, global governance, people to people relations. अब हम इंडिया EU रिलेशंस के कुछ हाईलाइट्स देखेंगे. तो देखिए, EU जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स. दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज $116 बिलियन इन 2021-22. ऑल्सो इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट का वो यूरोपियन यूनियन ही है. फाइन. उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ एमर्जिंग पार्टनरशिप्स हो रही हैं लाइक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क. फाइन. विच एम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन. उसके बाद इंडिया नॉर्डिक समिट विच वॉज हेल्ड इन मे. इट फोकस्ड ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन दैट आर वाइटल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. उसके बाद इंडिया और EU का डिफेंस कोऑपरेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है. फाइन. ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है टू रेड्यूस इट्स हार्डवेयर डिपेंडेंस ऑन रशिया इन द बैकड्रॉप ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. हमने देखा कि हमारे बहुत सारे जो क्रिटिकल इम्पोर्ट्स थे जो रशिया से आने वाले थे वो डिले हो गए बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. Fine. So India is looking for diversifying its defense import. So if you will just see, पहला तो ये है. सेकेंड है that India and EU they are regularly conducting joint military and naval exercise. ठीक है. तो यहाँ पे भी देखिए फोकस का क्या है, ओपन इंडो पैसिफिक रीजन. तो इंडिया EU नेवल एक्सरसाइज का भी फोकस इंडो पैसिफिक रीजन ही है. फाइन. उसके बाद देखेंगे कि फ्रांस ने 36 राफेल फाइटर जेट इंडिया को डिलीवर कर दिया है एंड
it has offered Barracuda nuclear attack submarine to Indian Navy. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम, ये एक एमर्जिंग एरिया ऑफ कोऑपरेशन है इन दो कंट्रीज़ के बीच में, एंड दे हैव एस्टेब्लिश्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी विद फोकस ऑन हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अर्थ साइंस. अब हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं. कुछ चैलेंजेस क्या है? दैट India has explicitly not condemned Russia's intervention in Ukraine. Fine, and Russia is one area of disagreement between India and EU. उसके बाद EU के साइड से भी एक एम्बिग्विटी है इन टैकलिंग द राइज ऑफ चाइना. जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था, गालवान क्लैश हुआ था, तो यूरोपियन यूनियन उस वक्त कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया था. फाइन, बट स्टिल द इंडिया EU रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, and the proactive India-EU Free Trade and Investment Agreement in 2021 is a step in right direction. So these are the highlights of India-EU relation. Now, friends, the next news is the conflict over Nagorno-Karabakh region. तो ये Nagorno-Karabakh region है. So यहाँ पे अगस्त 3 में फिर से प्रॉब्लम हो गया. This is the conflict between two region, that is Armenia and Azerbaijan. अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है. ये जो रीजन आप देख रहे हो नागोर्नो काराबाख, ये रीजन पूरा का पूरा आता है अजरबैजान में. ठीक है, बट यहाँ पे पॉपुलेशन कौन सी रहती है? अर्मेनियन. ठीक है, तो ये रीजन आता है पूरा का पूरा अजरबैजान में. पॉपुलेशन कौन सा रह रहा है? अर्मेनियन पॉपुलेशन. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम बिटवीन, दिस हैज़ बिकम अ रीसेंट प्रॉब्लम बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि देयर हैज़ बीन 3 मेजर वॉर्स एंड मल्टीपल क्लैशेस फॉर मैनी टाइम्स बिटवीन दिस टू कंट्री. रिसेंटली का क्या कब हुआ था? अगस्त 3 को हुआ था, जब अजरबैजान ने कहा कि दैट इट हैज कैप्चर्ड द टेरिटरी इन काराबाख इन अ रिटेलिटरी कैंपेन आफ्टर एन आर्मेनियन अटैक किल्ड वन अजरबैजानी सोल्जर. ठीक है, तो एक अर्मेनियन ने अजरबैजानी सोल्जर को किल कर दिया और अजरबैजान ने क्या किया? एक काराबाग की टेरिटरी को कैप्चर कर लिया. तब ये से प्रॉब्लम बढ़ गया. फाइन, अब यहाँ पे देखिए बाकू एंड येरेवन, तो दीज आर कैपिटल ऑफ दिस कंट्रीज. सो बाकू एंड येरेवन दे हैव क्लेम्ड एब्सोल्यूट हिस्टोरिक ओनरशिप ऑफ द रीजन. दोनों क्लेम करते हैं कि हमारा इसके ऊपर कंट्रोल है, बट प्रॉब्लम वही जो मैंने आपको बताया, दैट इट इज़ लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अजरबैजान बट पॉपुलेटेड बाई एथनिक अर्मेनियंस. फाइन, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2020 में ये प्रॉब्लम एक बार फिर से आया था. फिर रशिया ने इनको बीच में एक सीज फायर साइन करवाया था. तो रशिया भी अब कह रहा है कि अजरबैजान को कि अजरबैजान हैज़ ब्रोक द सीज फायर एग्रीमेंट ऑफ 2020 एंड रशिया इज़ टेकिंग ऑल द मेजर्स टू स्टेबलाइज द सिचुएशन. अब ये 2020 एग्रीमेंट इट वाज 9 पॉइंट एग्रीमेंट. ठीक है, इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट था. इसमें इम्पोर्टेंट था इमीडिएट सीज फायर. उसके बाद अजरबैजान से द ट्रूप विल कम आउट. उसके बाद फिर वहाँ पे उसको कौन वहाँ पे फिर कौन जाएगा? रशियन पीस कीपर्स. एंड देन देयर इज टू बी अ न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच कैन कनेक्ट अर्मेनिया एंड दिस रीजन विद इन अजरबैजान. फाइन, बट इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर कि ये तीनों के तीनों अभी तक नहीं हुआ है. पहला देखेंगे कि जो डीलिमिटिंग द बॉर्डर है बिटवीन द टू कंट्रीज़ वो नहीं हुआ है अभी तक. जो न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनना है वो भी पूरा नहीं हुआ है. फाइन, और उसके बाद जो फ्यूचर है अर्मेनियन पॉपुलेशन का इस रीजन में, उसके बारे में भी अभी तक कुछ कंक्रीट दे हैव नॉट रिजॉल्व. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर. द फोर्थ प्रॉब्लम इज़ एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स. फाइन, तो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स भी यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स में नहीं हुआ है. बहुत सारे हैं प्रिजनर्स जो अर्मेनियन हैं, दे आर स्टिल अंडर द कैप्टिविटी ऑफ अजरबैजान. द नेक्स्ट इज द कंट्रोवर्शियल विजिट ऑफ अ चाइनीज वेसल टू हम्बनटोटा. तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर युआन वांग 5 विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट एज अ साइंटिफिक एंड रिसर्च शिप. ये जो है एक कोलंबो बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, BRISL, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका. ओके, it has said that it first reported the visit of this vessel in the Hambantota region of
हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका। तो इसको इंडिया ने ऑब्वियसली प्रोटेस्ट किया। इंडिया इज सेइंग दैट इज अ चाइनीज स्पाई शिप होवरिंग इन द इंडियन ओशियन, बट बाद में श्रीलंका ने इसको अलाउ कर दिया है। फाइन, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट इट वाज रेडी टू डॉक, but now it is docking on 16 to 22 अगस्त इन दी हम्बनटोटा पोर्ट। तो इंडिया के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो यूएस ने भी प्रोटेस्ट किया है उसके ऊपर, और इवेंचुअली इफ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया श्रीलंका फॉरेन मिनिस्ट्री हैज अलाउड द डॉकिंग ऑफ पोर्ट एट हम्बनटोटा। द नेक्स्ट इज I have discussed about this fundamental duties key to social transformation. So over here he has also remembered Pingali Venkaiah. So Pingali Venkaiah is the architect of our national flag, which was adopted by Constituent Assembly on 22nd July 1947. The next is Srinagar to get Gaurav Stambh according to Manoj Sinha. So Gaurav Stambh, it will be established in Srinagar in the memory of the brave soldiers who have sacrificed their lives defending their motherland. The next is Project 75I. So India का एक Project 75I है for development of submarines, advanced submarines. Fine. So Russia has pulled out of this project. The next is clinical trial for Bharat Biotech intranasal vaccine completed. तो Bharat Biotech एक कंपनी है, वो एक इंटरनेशनल वैक्सीन बना रही है कोरोना के लिए, that is BB5154. Okay, so this vaccine is to be developed by Bharat Biotech, which has completed its clinical trial and it will be introduced. Now what is the advantage of this intranasal? So it will produce local antibodies in the upper respiratory tract. जहाँ पे कोरोना का जो सेकेंड वेव जब था तो जो डेल्टा वायरस था, डेल्टा स्ट्रेन, वो इसी को अटैक करता था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को. So it may produce local antibodies in the upper respiratory tract which may provide for the reduction in infection and transmission. The next is India gives Dornier aircraft to Sri Lanka. So if you will just see over here, तो इंडिया का एक प्रोग्राम है that is called as सागर. इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ठीक है, फॉर ऑल इन द रीजन. कौन सा रीजन? इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, तो इसके अंडर इंडियन गवर्नमेंट इट हेल्प्स द लिटोरल कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन. तो इसमें पहले मॉरिशियस को इंडिया ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया था, अब श्रीलंका को भी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया गया है. फाइन, अब यहाँ पे देखिए लास्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सी देयर इज़ वन थिंग विच इज़ कॉल्ड एज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. सो प्लीज़ राइट इट डाउन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये रिसेंटली अभी कोलंबो में हुआ था. तो इसमें जो रिसेंट जो है इसके मेंबर्स वो मॉरिशियस है, और जो बाकी के मेंबर्स है दोज आर इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन रीजन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. सो लेटेस्ट मेंबर इज मॉरिशियस. द नेक्स्ट इज वन लाइनर. The new president of Kenya, so William Ruto, he has been declared as president elect. The next is from China. So see, China announces new military drills. ताइवान को लेके ये न्यूज़ है. फाइन, तो चाइना ने मिलिट्री ड्रिल पहले भी किया था. नाउ चाइना हैज अनाउंस्ड न्यू मिलिट्री ड्रिल्स and here it is again fuming over United States, which is saying, China is saying that they are trying to challenge its one China principle. Now why China is saying that? Because recently Miss Nancy Pelosi, who is the Speaker of the House of Representatives of United States, she visited Taiwan. Fine, चाइना यूएस ने ताइवान के साथ 3 कम्युनिक साइन किए हैं 1979 से 1982 के बीच में, वेयर चाइना रिकॉग्नाइजेस वन चाइना, यूएस रिकॉग्नाइजेस वन चाइना पॉलिसी, दैट इज Taiwan part of China. But at the same time, US has signed Taiwan Relations Act 1979, in which US can help Taiwan for self-defense. Fine. अब ये जो नैन्सी पॉलिसी है, she has the recall of criticizing China over its action in Hong Kong, Taiwan, etc. Now her visit sparked a new diplomatic row, or you can say a security tension in Taiwan Strait, where China has taken military drills and often crossing the boundary, maritime boundary of Taiwan.
The next is again one liner that UK authorizes Moderna's Omicron specific booster for adults over 50. So that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.